مانگ کر سینے کی کشادگی لیتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں الم نشرح لکا صدرک، کہ ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا۔ کلیم وہ ہے جو کہتا ہے وَيَسِّرْ۔ ہیرا اسلامک چینل حسن کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک مل سکے۔ ہمارے ہر ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں۔ اللہ اکبر میرے لیے آسان کر دے، اور پھر کہتا ہے اللہ اکبر کہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ کلیم یوں مانگتا ہے، لیکن حبیب وہ ہے جس کے لیے ہم خود کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیارے زبان تیری ہوگی، کلام ہمارا ہوگا۔ یہ کلیم و حبیب میں فرق، یہ کلیم اور پھر ایک بات اور عرض کر دوں، کلیم وہ ہے جسے کتاب لینا ہو تو توریت لینے کے لیے طور تک آنا پڑتا ہے۔ کلیم وہ ہے، کتاب تو اللہ کی کتاب ہے، نبی تو اللہ کا نبی ہے۔ دیکھو کوئی نبی ادنا نہیں ہے، سب نبی اعلیٰ ہے، سب شان والے ہیں، سب اونچے۔ اسی لیے میرے امام کہتے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ یہاں ادنا کا تو بات امام نہیں ہے، تو آلوں سے آلہ ہے۔ اب کہتے سب سے اولا وہ آلہ، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی۔ اور انبیاء کی ہم توہین نہیں کرتے، انبیاء ہر نبی کی توہین کفر ہے، بلکہ ہم تو ان کو یوں کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے مالک ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی، اگر جملوں پہ توجہ دے سکتے ہیں تو دے دیں، وہ بھی ہمارے مالک ہیں۔ ہاں، اسی لیے ہمارے امام جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہلکے الفاظ سے نہیں بلکہ ان سے بھی یوں کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، عرض کیوں مالکو، یعنی وہ ادنا لوگ نہیں، بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں انبیاء سے کروں تصور میں عرض کیوں مالکو۔ سوال ہو رہا ہے تصور میں، آپ کہتے ہیں کیسے سوال ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں عشق کی منزل پر آ، پھر سوالات خدا سے بھی ہوتے ہیں، نبی کیا ہے؟ شان نبوت اپنی جگہ بڑی عظیم ہے، لیکن پھر سوال خدا سے بھی وہاں ہوتے ہیں۔ دیکھو بایزید بستامی کو، دیکھو جنید بغدادی کو، دیکھو رابعہ بصری کو، دیکھو غوث العظم دستگیر کو، لیکن اس کی یہاں تفصیل کی حاجت نہیں ہے، نہ وقت ہے۔ وہ کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، سوال کیا ہے؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یعنی ہمارا نبی آپ کا بھی نبی ہے؟ تو اب انبیاء جواب دیتے ہیں، اور جواب کا شان دیکھیں، جواب کا انداز دیکھیں، جواب کی شان۔ کہتے ہیں انبیاء کرام جیسے سب کا خدا، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ایسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ وہ نبی، اور انبیاء کہیں ہمارا نبی۔ توجہ اب کر لیں، یہ کسی نبی کو یہ شان حاصل نہیں ہے، ذرا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ انبیاء کہیں ہمارا نبی، جانور کہیں ہمارا نبی، فرشتے کہیں ہمارا نبی، جبریل کہیں ہمارا نبی، میکائیل کہیں ہمارا نبی، اسرافیل کہیں ہمارا نبی، اولیاء کہیں ہمارا نبی، جنات کہیں ہمارا نبی، زمین کہیں ہمارا نبی، آسمان کہیں ہمارا نبی، مخلوق کہیں ہمارا نبی، خالق کہے ولیکن رسول اللہ، وہ تو ہمارا بھی نبی ہے۔ سب سے اللہ جس کو ہمارا نبی کہے، ہمارا نبی، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کلیم سے کا کلیم وہ ہے، کلیم وہ ہے جسے کتاب لینا ہو تو توریت پہ آئے، توریت لینا ہو تو طور پر آئے،
तौरेत लेना हो तो तूर पर आए और आ करके एक रात में तौरेत न मिले, 2 में भी नहीं, बल्कि 1 महीने तक रोजा रखें, रातों को इत्तिकाफ करें, मिसवाक कर लें। शाने पैगंबराना से तो निदा आती है, मूसा जो बू आपके मुंह में रोजे से पैदा हुई थी वो मिसवाक की वजह से चली गई, वो बू पैदा हो जाए 10 और बढ़ा लो, तो 30 को 40 करवा दिया गया। फिर किताब दी गई, ठीक, लेकिन कहा कलीम वो है आए एहतिमाम करे तो किताब मिले, हबीब वो है कहीं ना आए, हबीब वो है कहीं ना आए, वो जहां जाए किताब वहीं जाए, वो जहां जाए, वो मक्के में हो किताब मक्के में, वो गार में हो किताब गार में, वो सफर में हो किताब सफर में, वो जंग में हो किताब जंग में। हद तो ये है अगर वो बिस्तरे आयशा पर हो तो अल्लाह की किताब बिस्तरे आयशा पर आती है। और उसके बाद तौरेत में कोई सूरत, तौरेत में कोई सूरत न मिस्री है न शामी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 इलाकों में जिंदगी गुजारी, एक मिस्र में एक शाम में, लेकिन तौरेत की कोई सूरत न मिस्री है न शामी है। लेकिन ये खुदा के कलाम की शान है कि कुरान की बात सूरतें मक्की है और बात सूरतें मदनी है। लोगों से पूछा ये तो अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम मक्की मदनी कैसे हो गया? तो लोगों ने कहा जो मक्के में नाजिल हुआ वो मक्की हो गया, जो मदीने में नाजिल हुआ वो मदनी हो गया। हमने कहा बात मुकम्मल सही नहीं है, मक्के मदीने की बात नहीं है, बात मुकम्मल सही का। फिर हमने कहा नबी ने हिजरत से पहले जहां भी कदम रखा और कुरान नाजिल हुआ तो वो सब मक्की है। फिर चाहे जहां हो, मक्के से बाहर भी हुआ तो भी मक्की है हिजरत से पहले, और मदीने में जब आ गए हिजरत करके, अगर मक्के में नाजिल हुआ हिजरत के बाद तो भी अब वो सूरत मक्की, मक्के की वजह से मक्की नहीं है, वो सूरत मक्की नहीं है। हिजरत से पहले की सारी सूरतें मक्की और हिजरत के बाद की सारी सूरतें मदनी, अगरचे मक्के में आई, अगरचे मिना में आई, अगरचे अरफात में आई। वरना मेरा चैलेंज है जी, जब आयत पढ़ी जाती है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, इस आयत पर पूरी उम्मत का इज्मा है कि ये जो है वो मैदान अरफात में नाजिल हुई है, हज्जतुल वदा के मौके पे नाजिल हुई है। मगर कोई नहीं कहता कि ये मक्की है, सब कहते ये मदनी है। आप मुझे बताएं तो मक्का क्या मदीना क्या? मक्के में नाजिल होने वाली मक्की नहीं, मदीने में नाजिल होने वाली मदनी नहीं है। हिजरत से पहले वाली सब मक्की, हिजरत से बाद वाली सब मदनी। वजह क्या है? वजह यह है हिजरत से पहले नबी मक्की कहलाते थे और हिजरत के बाद नबी मदनी हो गए। तो जब नबी मक्की थे तो कुरान भी मक्की, नबी मदनी हुए तो कुरान भी मदनी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का रंग कुरान की सूरतों पर देखो, हुजूर का रंग कुरान की सूरतों पर देखो। वो मक्की थे तो कुरान मक्की, वो मदनी हुए तो कुरान मदनी हो गया है। और फिर अंबिया को अलग अलग जो शानें दी उनको खास दी। हजरत इब्राहीम अल्लाह की रजा के लिए इकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी रखें ताकि अल्लाह राजी हो जाए, और अल्लाह उनकी रजा के लिए किबला बदल दे, उनकी रजा के लिए ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करें, अपने नबी पत्थरों में जान पैदा करें। एक बात अर्ज करें, सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां समझते, ठीक, हमारे नबी सबकी बोली, जो बोली नहीं जानता उसकी भी बोली समझ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस शरीफ कहाँ की है? मुस्लिम शरीफ, सही मुस्लिम में है। आका फरमाते हैं, तवज्जो करें क्या फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को अभी तक जानता हूं,
पहचानता हूं उस पत्थर को अभी भी, जो पत्थर ऐलान नबूवत से पहले मुझ पे दुरूदो सलाम पढ़ता था। मेरी कौम के जवानों, बोलो अब यहां आकर एक मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? आज इस बात पर मुसलमान लड़ रहे हैं। दो तबके हो गए, एक कहता है 40 साल के बाद नबूवत मिली, और एक कहता है हदीस में है कि जब आदम और हव्वा मिट्टी और पानी के दरमियान थे तब भी वो नबी थे, नबूवत उस वक्त भी नहीं मिली। जब वक्त नहीं था तब से नबी है, जब तब नहीं था तब से नबी है, जब कब नहीं था तब से नबी है। वक्त नहीं था, टाइम नहीं था, जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, कुछ नहीं था। नबी बनाया कब, बनाने वाला जाने, बनने वाला जाने। ये मसला, इस पर उम्मत लड़ रही है। मैं कहता हूं लड़ो नहीं, उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है। बस बात इतनी करनी है, अपने मौलाना की बात करने की बजाय मौला वाली बात करो। आप ये क्यों कहते हैं कि मेरा मौलाना ये कहता है? छोड़ यार, इसी पर तो लड़ रहे हो। ये क्यों नहीं कहते कि मौला ये कहता है? मौला ने जैसा बनाया वैसा मानो, अपनी मर्जी क्यों? और कौन सा मौलाना फिर माना जाएगा? मौलाना वो माना जाएगा जो मौला वाली बातों की तर्जुमानी करता हो, अपनी मर्जी से ठोक पीट नहीं करता हो। आप देखें आका क्या फरमा रहे कि मैं उस पत्थर को जानता हूं, और ये बात सियाह सित्ता में, सही मुस्लिम में है। क्या उस पत्थर को पहचानता हूं जो नबूवत का ऐलान से पहले मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता था। अब आप मुझे बताएं, अगर आप कहते हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, तो पत्थर दुरूद और सलाम किस पे पढ़ता था? आम आदमी पे पढ़ता था। और आप कहते हैं उनको तो पता ही नहीं, 40 साल तक नहीं मालूम था कि वो नबी हैं। वो तो खदीजा का एहसान है कि वर्का बिन नौफल के पास ले गई और वर्का ने कहा कि आप नबी हैं। उनको नहीं पता था, उनको नहीं पता था। अब मैं पूछता हूं लोगों, फिर पत्थर को मानो कि नबी को मानो? क्योंकि पत्थर को पता है कि ये नबी है। यही तो बात हो रही है आपके फलसफे से। पर सही मुस्लिम बता रही पत्थर को पता है कि ये नबी है, और नबी को नहीं पता कि मैं नबी हूं। कितनी नादानी की बात है। वल्लाह जो ऐलान नबूवत से पहले पत्थरों की बोलियां जानता है वो हमारा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रही बात वर्का बिन नौफल के पास नहीं ले गई थी मां खदीजा? बिल्कुल ले गई थी। मुझे कब इनकार है? तो कहा क्यों ले गई थी? बात यही शान की है। मूसा कहे मैं नबी हूं, खुद कहे मैं नबी हूं, ईसा कहे मैं नबी हूं, दाऊद कहे मैं नबी हूं, अय्यूब कहे मैं नबी हूं, जुल्किफ्ल कहे मैं नबी हूं, उज़ैर कहे मैं नबी हूं, मूसा कहे मैं नबी हूं, इब्राहिम कहे मैं नबी हूं, इस्माइल कहे मैं नबी हूं। सबने कहा मैं नबी हूं। गैरत कुदरत ने कहा सबकी तरह तू नहीं कहेगा, तू चुप रहेगा। मखलूक कहेगी कि आप नबी हैं। औरों से कहलवाऊंगा, औरों से कहलवाऊंगा कि आप नबी हैं, वरना वो तो जानते हैं, इसलिए कि पत्थरों की बोलियां समझते। बचपने में बकरियां सजदा करती थी। हलीमा सादिया कहती है, हलीमा कि जब कोई मेरे इलाके की बकरी बीमार हो जाती तो लोग बकरियां लेकर आते, नन्ना से मोहम्मद के हाथ को